We will start very soon. सभी कोई all are yet to join.
All right, so most of you have joined. So we will start with new unit, that is vectors. अब वेक्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी कंफर्म फ्रॉम यू ऑल कि कोई डाउट्स है मोशन में, तो सभी के ज्वाइन करने से पहले हम वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. एनी डाउट्स इन मोशन गाइस? कंप्लीट मॉड्यूल में से Yashas, jerk we do not have even till class 12, but if you want to know what is jerk, you can remember it is the rate of change of acceleration, dA by dt. That is jerk, but it is not required. Right, I'll upload the notes. Jerk time graph. चलो jerk time graph दे दिया. ये रहा jerk, ये रहा time. तो jerk time graph let us suppose ये दे दिया. What does this show? Jerk is decreasing with respect to time. कोई डाउट्स हैं मोशन में? एनीवन कैन आस्क मी, else we will start with a new unit today, that is vectors. ग्राफ में ये देखो, जर्क इज डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. 1 सेकेंड पे जर्क क्या है? लेट अस सपोज 10 है. 2 सेकेंड पे जर्क क्या है? कम हो गया, 8 हो गया. ये जर्क लिखा हूं, जर्क वर्सेस टाइम. अगर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम लेते हो तो ये ले लो, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम. सो इफ यू फाइंड द स्लोप you will get jerk from here, because jerk is dA by dt. In the same manner, if you count the area here, एरिया क्या देगा यहाँ पर? जर्क टाइम का एरिया देगा हमें चेंज इन एक्सीलरेशन. और कोई डाउट्स हैं किसी को? इफ यू डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, बिकॉज ds बाई डी टी किया हमने तो हमें मिला वेलोसिटी, और dv बाई डी टी क्या है? एक्सीलरेशन. तो v के जगह ये रख दो, वी विल गेट d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी. वी ऑल्सो राइट इट एज d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर. सो दिस इज एक्सीलरेशन. ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, बस कॉन्सेप्ट सेम है. पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट एक्सीलरेशन. मतलब एस को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? वेलोसिटी. वेलोसिटी डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? एक्सीलरेशन. yes, if you differentiate 3 times you will get jerk, right? Because jerk is dA by dt, है ना? So you can write d cube s by dt cube for jerk. और कोई डाउट? पूरे मॉड्यूल, the complete module. How do we find graph using differentiation? What do we mean by this question?
How do you find graph using differentiation? That's not a valid question. What do we mean by this? As you asked, how do we find graph using differentiation? What is this? Dy by dx, right from the start we have been talking, this means slope. X और y का ग्राफ है. So this is the point whereby we start with differentiation. कि dy by dx क्या है? Slope है. Okay, dy by dx is representing the slope in x versus y graph. Okay, so modular discussion भी हो गया था. Let us start with vectors today. Yes, at curved places graph is different. So you can say point is different, so slope will be different. So yes, we will start with vectors. So if I talk about any physical quantity, we know that physical quantities are those quantities, पहले इसको याद करेंगे, these are those quantities that can be measured. Those quantities that can be measured, we call that as physical quantity. So what all quantities we can measure? Let us say I write here some examples. Time, distance, force, current, happiness, sadness, temperature. So if you look at all these quantities, so these are quantities, and amongst those quantities, what I can measure? I can measure time, distance, force, temperature, and current. So whatever things we can measure, those are physical quantities. So if you look at happiness and sadness, you cannot measure exact amount of happiness or sadness. You do not have any specialized instrument to measure it. Yes, you can only compare that this person is happy, this person is more happy, but still exact amount of happiness कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास इसको मेजर करने के लिए, राइट? So these are not physical quantities. So is this clear what is a physical quantity? So if you look at physical quantities, time, distance, force, temperature, current, even displacement, ये सारी चीजों को हम measure कर सकते हैं. We can calculate them. So if you observe all these quantities, some quantities have only the magnitude and some quantities have magnitude and the direction associated with it. Magnitude भी है और direction भी है. So those quantities which have only magnitude, they are called as scalar quantities. So observe, I am categorizing the types of physical quantities as scalar quantities, or these are called as vector quantities. So what is a vector quantity? Those quantity having direction and magnitude. Magnitude क्या होता है? This is just a kind of value.
So for example, I say that I have measured the temperature. तो टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? 10 केल्विन, 50 केल्विन ऐसे मेजर करेंगे. सो इफ यू लुक हियर देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, बस वैल्यूज हैं हमारे पास. दैट्स व्हाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट अनदर क्वांटिटी, जैसे कि मैं कह दिया फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स राइट. सो यू कैन ऑब्जर्व, मैं जब भी फोर्स कहीं पर लगाऊंगा वो फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, right? So direction has to be associated with the force. That's why this force is a vector quantity. So this is clear how to categorize scalar and how to categorize vectors. So now can anyone tell me what is the need of vector quantities? Why we require vector quantities? Because this vector quantities gives us extra information, or you can say additional information. And we always prefer that information which is quite more extensive, quite more expressive as well, right? इसमें देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ पर्सन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and a person is walking at a speed of 10 meter per second along east, so which is more informative? Of course this number 2 statement. ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. क्यों इंफॉर्मेटिव है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. Okay, so first you all can write them down. So keep writing parallelly. I'll also add the notes today. All the notes whatever is pending I'll add that. Okay, so let us see how do we actually represent a vector. है ना, वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया कि चलो ये वेक्टर है या फिर ये स्केलर है. नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? So there are two ways to represent a vector. One is a mathematical way and another one is diagrammatic way, or you can say pictorial way. ये याद करना जरूरी नहीं है द डिफरेंट वेज, बट समझना जरूरी है कि डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज आई से दैट ड्रॉ अ लाइन. अगर एक लाइन ड्रॉ करना है ऑफ 5 सेंटीमीटर, सो व्हाट यू विल डू, एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर तक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो जरूरी नहीं है ये लाइन को ऐसे ही ड्रॉ करें, कोई लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है 5 सेंटीमीटर का, कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है 5 सेंटीमीटर का, कोई ऐसे भी कर सकता है. सो वी डू नॉट हैव अ फिक्स्ड ओरिएंटेशन, वी डू नॉट हैव अ फिक्स्ड way to draw. But if I say draw a line of length 5 centimeter, draw a line of length 5 centimeter which goes towards east. तो ऑफ कोर्स इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना होगा. अब शो कैसे करेंगे दैट इट गोज टुवर्ड्स ईस्ट? जस्ट बाय यूजिंग एरो. कहीं पर भी एरो डाल दो. जनरली हम क्या करेंगे, ये एक जनरल रूल बना देंगे कि एरो को हमेशा लास्ट में ऐड करना है. कोई जरूरी नहीं, बट वी विल मेक अ जनरलाइजेशन. सो एन एरो, और एरो का लेंथ कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, बिकॉज आई हैव गिवन यू द मैग्नीट्यूड, right? So this becomes the diagrammatic or pictorial representation.
तो डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ऐसा। और उसमें याद रखना ये जो लेंथ है, लेंथ क्या है, लेंथ इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का। डायरेक्शन हाउ डू वी नो, बाय द एरो हेड। इट इज अ लाइन एडेड एन एरो टू इट, इसी को हम रे कहते हैं। व्हाई इट इज नॉट अ लाइन, लाइन बनाया फिर एरो डाला, add I added arrow then it becomes ray. We will not bring ray here, we are not studying light. Rays always emerge from some sources of light, है ना। तो यहाँ पर हम अगर वेक्टर की बात करेंगे, we will talk about vector in terms of magnitude and direction, है ना। एक रे का भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ वेक्टर। क्या रे कहीं पर एंड होता है? यशस, व्हाट डू यू मीन बाय arrow head is parallel to the line? It can be perpendicular to the line. How will you draw the arrowhead perpendicular to the line like this? If I am saying that I am going along east, that is very, very logical that I put an arrowhead in the east direction. Tell me what you mean by arrowhead is parallel to the line. That can be representable. Keeping it perpendicular at the end. परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे परपेंडिकुलर बना सकते हो? एक, अगर तुम्हें डायरेक्शन शो करना है गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, इससे सिंपल क्या हो सकता है बनाना? इफ आई मेंशन गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, कुछ ऐसे कह रहे हो, ये कह रहे हो? इनवर्स लेटर के, ये क्या हो गया इनवर्स लेटर के? ये के है, इसका इनवर्स क्या है? ऐसे, ऐसे, ये कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, नो वन हैज टू थिंक। जब हमारा फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेशन हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग व्हाट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। सो रिप्रेजेंटेशन इज अ लाइन एंड एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे जा रहे हैं, राइट। मैं अगर पूछूं ये लेटर के कहाँ है, मैं यहाँ पर हूँ, सो वेयर इज दिस लेटर के? यहाँ है ना। तो इसमें अब ये क्यों सोचेंगे कि यहाँ है? मैं कैसे कैसे अलग अलग वे में डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, कुछ ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, ये अलग अलग डायरेक्शन शो करने का तरीका क्यों सोचना है? वी हैव अ फिक्स्ड वे एंड वी आर रीडिंग दैट कि डायरेक्शन ऐसे शो करना है। और अगर हम नहीं भी पढ़ें, सो दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग कि अगर मुझे डायरेक्शन शो करना है तो कैसे शो करूंगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। So this is the diagrammatic or pictorial representation of a vector. Talking about mathematical representation, तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, हम फोर्स को कैसे मेंशन करते हैं? 10 न्यूटन, राइट।
So mathematical way to represent a vector. So if you have a vector, let us say this is a vector. इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा and it has direction. So remember, a vector is represented by a letter and an arrowhead to it. So वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, we call this as modulus of a, modulus of a, or you can say modulus of vector a. डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, we call this as a cap, a cap. धीरे धीरे सब क्लियर होंगे, अभी हम बस रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं. अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन, यशस ये क्या है मुझे समझाओ. ये लाइन है और इसका ये क्या मतलब है. What, okay, vertical line is actual line drawn, actual line drawn. Horizontal line is imaginary. What is this? Horizontal line is imaginary. We are reading about vectors. यहाँ पर real और imaginary कहाँ से आ गया. इससे इसको सोचने से बेटर है अगर आप कंसंट्रेट करो तो वेक्टर के बारे में ठीक से जान पाओगे. रियल और इमेजिनरी हमें क्यों सोचना है. एरोज रिप्रेजेंट डायरेक्शन. ये डायरेक्शन क्या है भाई, ये लाइन बना दिया, एक्चुअल लाइन कह दिया, ये डायरेक्शन. मुझे समझाओ तो ये क्या है. ठीक है ये लाइन है, दैट्स ओके, दिस इज लाइन, दिस इज डायरेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस. फिर मैं ये बना दूं, ये एक सर्कल है और ये एक डायरेक्शन है, लेकिन इससे मैं क्या समझा पाऊंगा. Okay, yes, you can ask me after the class on WhatsApp. We have a clear cut picture. ना तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाया. We have a very simple representation. एक लाइन बनाया, लाइन को एक डायरेक्शन दे दिया. So this shows that this line is going towards the east. The direction is east. If you are here, if this is north, this is south, this is east, this is west. If you want to go 5 meters along north, what will you do. ऐसे ही शो करोगे ना सबको 5 meters along north, कि कुछ ऐसा सोचने लगोगे. यहाँ से लाइन बना दिया और कुछ इमेजिन करेंगे यहाँ पर ऐसे. क्यों क्यों सोचना है ये. हमारे पास अगर हम इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि नॉर्थ जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे ना नॉर्थ. अब जितना ज्यादा डिस्टेंस जाएंगे उतना बड़ा ये एरो होगा. 5 मीटर, इफ आई गो 5 meters along नॉर्थ तो ये बना दिया. इफ लेट अस सपोज आई गो 10 meters along नॉर्थ तो ये बना दिया. Talking about the mathematical way to represent a vector. Vector has two things, magnitude and direction, that we have been reading. तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारा फिक्स्ड थिंग है. तुम ये लिख दो ना, v इज इक्वल टू m इंटू डी.
ये समझ लो वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, बट जो फिक्स्ड है हम उसको पढ़ेंगे, जो हम यूज करते आ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। ए इज द वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, ए वेक्टर से, मतलब ए और उसके ऊपर एरो से। वी कॉल दिस एज द मॉडुलस ऑफ ए, जो कि मैग्नीट्यूड होता है हमारा, एंड ए कैप इज द डायरेक्शन, राइट, ए कैप इज द डायरेक्शन and this is the magnitude and this is the complete vector. So this is just one representation. रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है, वेक्टर को हम ए बार से भी कभी डिनोट करते हैं, तो ये भी हो गया वेक्टर, बट यस ए कैप विल ऑलवेज बी प्रेजेंट टू शो द डायरेक्शन। हाउ विल आई से दैट आई हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? कुछ अगर लॉजिकल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यूज करूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये मैंने अपना कन्वेंशन बना दिया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड भी है एंड एडेड टू इट देयर इज डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये थोड़ी समझना है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कर दो। डिड आई से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन? नो, आई सेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो एंड कहने के बाद मैंने ये प्लस साइन लिखा है। तो वो ध्यान देना होगा जिस समय हम स्टेटमेंट्स उसको रीड कर रहे हैं। ओके, ऐसा ये लिखने का कोई मतलब नहीं होता है मैग्नीट्यूड डॉट डायरेक्शन, व्हाट डज दिस मीन? कुछ समझेंगे हम इससे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो यहाँ पर मैं एंड ही लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एंड वन मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर मैग्नीट्यूड वी हैव, वेक्टर कुछ भी लें, ये ले लें या फिर ये ले लें, बट दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड का एक और रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट इफ यू राइट द लेटर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। So first thing first, we are going to see a vector and we will see the pictorial representation and the mathematical representation. इसको पहले नोट कर लो सब, तो बहुत इजी लगेगा, इसको जब हम यूज करेंगे ना तब इजी लगेगा। स्टार्टिंग में तो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो जिनको भी डाउट्स है ना, अभी गिव मी जस्ट 10-15 मिनट्स, क्योंकि है ना ये किसी को भी हम पहली बार बताएंगे दे ऑल विल गेट कंफ्यूज। मुझे भी पहली बार अगर कोई बताएगा आई विल गेट कंफ्यूज। सो गिव मी 10-15 मिनट्स, उसके बाद आई विल गिव चांस एवरीवन, हर कोई मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं एंड दे कैन आस्क मी देयर डाउट्स। विल द एरो ऑन ए ऑन द राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉइंटेड अपवर्ड्स? हाँ हाँ, ये एरो नहीं है, बिकॉज ये एरो नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ए लिख दिया और उसके ऊपर ये एरो नहीं है, एरो की ये कंप्लीट एरो हुआ ना, जिसका कि यू कैन से देयर इज अ टेल आल्सो। यहाँ पे सिर्फ हमने ऐसा साइन लगा दिया है ना, बस इसका ये पार्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन सिर्फ शो कर रहा है। और डायरेक्शन कौन शो करता है? एक लाइन है, डायरेक्शन कैसे शो करूं, ये वाली चीज लगा दूं तो डायरेक्शन शो होगा, ये लाइन है तो ये वाली चीज, तो इसको भी हमने फिक्स कर दिया कि हमेशा ऐसे बनाना है। अब कोई भी ये नहीं करेंगे एग्जाम में
कि डायरेक्शन का मतलब, चलो आज मैं ये लगा देता हूँ एग्जाम में, हमारे पास फिक्स्ड सिंबलाइजेशन है। इन फिजिक्स वी हैव फिक्स्ड सिंबलाइजेशन, इफ यू राइट दिस complete thing will be wrong, you will not be awarded even 0.5 marks. तो चलो आगे बढ़ते हैं, एंड आई मेक श्योर थोड़ी देर में सबको समझ में आने लगेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बस। इफ आई से यू ऑल, ध्यान देना है अब क्वेश्चन पे, टू ड्रॉ, और लेट अस से राम गोज 10 meters along ईस्ट, नहीं अब मैं कर देता हूं साउथ, 10 meters along साउथ। तो ये एक एक क्वेश्चन होंगे, हमारा मेन क्वेश्चन होगा रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन एज वेक्टर। तो ठीक है, राम गोज 10 meters along साउथ, इंफॉर्मेशन तो है ना वेक्टर के फॉर्म में ही है, बट हम व्हाट वी प्रिफर, we do not prefer statements, we prefer either diagrammatic representation or mathematical representation। ठीक है, तो diagrammatic representation क्या है, साउथ में जा रहा है मतलब डेफिनेटली, चलो स्क्रीन जरूरी नहीं है कि स्क्रीन में मैं यहाँ साउथ कह दिया तो साउथ का रियल डायरेक्शन यही है। मैं क्या करूंगा, आई विल अज्यूम दैट इफ साउथ डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, अगर ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो ये दिया हुआ है, लेट अस सपोज। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, तो कैसे करेंगे, 10 meters along साउथ, तो 10 meters का ये लेंथ रहेगा। अब देखो 10 मीटर ड्रॉ तो नहीं करोगे ना लेंथ, वी विल जस्ट राइट 10 meters here, and this will be along south, है ना, so you don't even need to mention south, the complete vector we have represented here। Okay, so this is clear, the diagrammatic way to represent a vector is clear। Now let us see the mathematical way। So mathematical way, to understand that we have to also understand the different denotions for directions, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, एंड राम गोज 10 meters along साउथ, तो ये चलो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस से आई रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट विथ एस वेक्टर। तो मैथमेटिकली हाउ आई विल राइट, वेक्टर लिख दिया ना, एस वेक्टर। अब इसमें क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे और डायरेक्शन होंगे। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि कैप के लिए हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट गॉन थ्रू द कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस। बट चलो यहां पर मैं अभी तक के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं, राइट। अगर ये साउथ डायरेक्शन है तो ये क्या हो गया, एस कैप। नॉर्थ डायरेक्शन चलो एन कैप कह दिया, ईस्ट डायरेक्शन ई कैप कह दिया, वेस्ट डायरेक्शन डब्ल्यू कैप कह दिया। तो ये भी मेंशन होंगे, यू हैव टू जस्ट कंबाइन। सो आई होप नाउ इट मेक्स लिटिल सेंस, बट आफ्टर दिस थ्योरी इट विल मेक कंप्लीट सेंस टू यू ऑल। ये बनाया मैंने एक्स और ये बनाया हमने वाई, तो ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया। सो इफ अ person goes 10 meters along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आदमी किधर जा रहा है, 10 मीटर इधर जा रहा है, राइट। आदमी ऐसे जा रहा है 10 मीटर्स। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, या तो ऐसे कर दो या फिर एक मैथमेटिकल सिंबलाइजेशन यूज करो। सो वी हैव द सिंबलाइजेशन, वी हैव द डायरेक्शन फॉर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। प्लस एक्स का डायरेक्शन क्या है, आई कैप। What is the direction of positive x axis? डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स का क्या है,
आई कैप, तो माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस आई कैप, प्लस वाई का क्या होगा, जे कैप। ये फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं फिर से नया कोई लेटर क्रिएट कर देंगे अब। माइनस वाई का माइनस जे कैप, जेड एक्सिस का है के कैप, और माइनस जेड एक्सिस का है माइनस के कैप। तो इस पूरे स्टेटमेंट को वी कैन रिप्लेस दिस मैथमेटिकली एज 10 आई कैप हो गया। अब ये अगर डिस्टेंस है, लेटर सपोज हम, ये मैं कोई लेटर से डिनोट कर देता हूं, एस वेक्टर, तो एस वेक्टर क्या हो गया, 10 आई कैप। आ गया ना डायरेक्शन, आ गया ना मैग्नीट्यूड। तो ये जो चीज है, ये जो टेबल है, ये याद करना है। ऐसे याद करो, एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, और जी एक्सिस के कैप। तो जनरली एक्स एक्सिस वाई है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो प्लस आई कैप, नेगेटिव के जगह सिर्फ माइनस लगा। ठीक है, गोइंग टू द टॉप टू द प्रीवियस क्वेश्चन। चलो, अगर जनरली क्या होता है, एक्स वाई ऐसे एक्सिस होते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को जो हमने लिखा, एस वेक्टर इज 10 एस कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 10 जे कैप। अब सभी को समझ में आया कि मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूं, माइनस 10 जे कैप। तो अगर अब डाउट है किन्हीं को, दे कैन आस्क मी related to the representation of vector। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स को ये डाउट है, दे आर सेइंग कि ये एक लेंथ ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर कुछ ऐसे वेक्टर बना दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये एक अलग वेक्टर है, ये भी जो है ना, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वेक्टर, क्योंकि हमारा फिक्सचर है दैट दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, और उस पे ऐसे ही डायरेक्शन अप्लाई करेंगे। अगर ऊपर जाना है तो लाइन बनाओ ऐसे, और ऊपर जाएंगे ऐसे डायरेक्शन शो करेंगे। लेट अस सपोज मुझे ए से बी जाना है, तो किस डायरेक्शन में जाऊंगा, हाउ विल आई शो, ऐसे अगर शो कर दिया तो क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगा, will you be informed that I am going from A to B? No. To show that I am going from A to B, I have to show it like this. And that's what we mean by the vectors. चलो सोचो सोचो, क्वेश्चन सोचो। हाउ विल वी आइडेंटिफाई डायरेक्शन इफ इट इज द जेड एक्सिस? एक्स वाई क्या है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, राइट, 90 डिग्री है। तो जेड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन को अगर देखूं विच इज गोइंग इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, ये मैंने क्या किया, आई टुक द कॉर्नर ऑफ माई हाउस, है ना, दिस इज बॉटम मोस्ट पॉइंट एक कॉर्नर का। ये वॉल्स हैं चारों तरफ, ये दो तरफ है वॉल्स, दो तरफ नहीं है।
तो इसमें ये अगर एक्स एक्सिस मान लिया, राइट, आई जस्ट अज्यूम्ड, ये अगर वाई एक्सिस मान लिया, तो ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस होगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, नो डाउट्स इज दैट, सो आई अज्यूम यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। ये याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन का करेंगे और दूसरा करेंगे अ मैन is running at a speed of 10 meters per second along west. Again, you have to represent in terms of or as vectors. Statement क्या है? I have covered a displacement of 2 meters along northeast. ये टेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिनको भी यूज करना है इन क्वेश्चंस में, यू कैन यूज देम। तो दोनों वे रिप्रेजेंट करोगे, मैथमेटिकल वे एंड पिक्टोरियल वे। So first do them and then we will match up with the results. So question 2 पहले करेंगे जल्दी से। Yes, you will write the units even after writing the vectors. The unit is always required, because if I just give s is equal to 10i, what will you understand from this? That is okay, magnitude is 10, but where is the unit? Is this distance? Is this speed? Is this force? So you have to write 10 I cap meter per second. Okay. सभी को करेंगे, ये दोनों दोनों कर लो, फिर दोनों डिस्कस करेंगे, सोच सोच के दोनों करो।
सभी सभी कोई करेंगे, फिर हम आंसर मैच करेंगे। So represent the information below in terms of vectors. Statement 1. I have covered a displacement of 2 meters along northeast. अब देखो हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये अगर x डायरेक्शन में है तो ये y डायरेक्शन में होगा बिकॉज दे आर 90 डिग्री। तो पहले केस में हम क्या आई कैप और जे कैप के टर्म्स में मेंशन कर सकते हैं? आंसर इज नो। आई हैव ओनली वन वे टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज कि एक लाइन बना दिया नॉर्थ ईस्ट में 2 मीटर का, दैट्स ऑल, है ना। ये शो कर दो 45 डिग्री, दैट्स मोर देन इनफ टू इंडिकेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन क्या होगा 45 विथ रिस्पेक्ट टू ईदर नॉर्थ और ईस्ट। नंबर 3, इफ यू लुक, a man is running at a speed of 10 along west, वेस्ट मतलब इधर दौड़ रहा है 10 के स्पीड से। तो एक तो ये इंफो रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एल्स आई कैन राइट इट एज -10 आई कैप। ये हो गया मैथमेटिकल वे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, इसके मैथमेटिकल वे अभी मैंने क्यों नहीं बताया, बिकॉज दैट इज क्वाइट मोर कॉम्प्लेक्स। इसको भी हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट इफ वी कैन ड्रॉ a vector or not, or directly if we can use I cap and J cap together or not। ये क्लियर है? Diagrammatic representation, here also diagrammatic representation and mathematical representation। नॉर्थ ईस्ट को भाई z कैसे कंसीडर कर लोगे आप? 90 डिग्री है ना एक्स वाई और z। तो अगर नॉर्थ हमारा इधर है, ईस्ट हमारा इधर है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है क्या? क्या नॉर्थ, अगर इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट इसके परपेंडिकुलर होता है क्या? ये नहीं होता है ना परपेंडिकुलर, नॉर्थ एंड ईस्ट, z axis is perpendicular। So let me know how many of you have understood complete thing which we have gone through till now। This is basics of basics, basic से भी कम है अभी।
गुड, सभी को समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड. So let us move ahead. Now we will talk about the types of vectors. So the different types of vectors we will see. So number one, we have equal vectors. And then we have negative vectors. We have zero vector as well. We also call it as null vector. And unit vector. So there are other types of vectors. We will not take that into consideration as of now. So first we will talk about the basics of this. So at last we have position vector. So one by one we will see what they mean. So we will start with equal vectors. So first you all can note them down. These are the different types of vectors we have to go through now. Okay, everyone would have noted. Now let us see equal vectors. With respect to the name only, we should be able to understand what they mean. Equal vectors means two vectors having same magnitude with same magnitude and same direction as well. है ना, magnitude भी same हो और direction भी same हो, then only we can say equal vectors. For example, if I draw a vector here of length 2 meters along, let's say, northeast, and I draw another vector
of 2 meters which is parallel to this first vector, then in this case also we can say these two vectors are equal because parallel हैं तो डायरेक्शन क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे, right? So in short we can say that two parallel vectors are equal vectors. They are called as equal vectors. Talking about negative of a vector. Now ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, लेट्स सपोज ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर. तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर यू हैव टू जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन. तो मैं अगर माइनस ए वेक्टर बनाऊं तो सेम लेंथ का बस डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, राइट? सो ऑब्जर्व, this is a vector, then this is negative of a vector. So what is negative of a vector? What did we do? We reverse the direction of original vectors. That's all. Zero vector or null vector, those vectors whose magnitude is zero. Vector with zero magnitude is called zero vector. Now you would say, why we are taking zero magnitude wala vector? So this is to understand, to satisfy the clarity of equal vectors. अगर दो equal vector को subtract किया हमने, a vector minus a vector, result क्या आया? क्या मैं zero लिखूं? No, I should write zero vector. Zero ही आएगा result. But vector क्यों लिखा? Because if I subtract two vectors, I will get vector. दो नंबर को ऐड करो, क्या मिलेगा? एक नया नंबर मिलेगा. ये नंबर क्या है? दे आर स्केलर्स. इफ यू ऐड टू स्केलर्स और इफ यू सब्ट्रैक्ट टू स्केलर्स, you will get another scalar. Similarly, if you add or subtract two vectors, then we are going to get vector. तो अगर सिर्फ यहाँ पर जीरो लिख देता तो वो गलत हो जाता कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए हमने जीरो वेक्टर बनाया. Unit vector, as the name suggests, it is that vector whose magnitude is 1. यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है जीरो वेक्टर का? जीरो. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1. और यू से यूनिटी. So it is to be noted that all direction vectors are of unit magnitude, means they have magnitude as 1. तो मतलब जो हमने पढ़ा आई कैप, जे कैप या के कैप, इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो कैसे शो करेंगे मैग्नीट्यूड? ऐसे. एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड? इट इज 1. ठीक है? दैट इज द रीजन व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग unit vector or direction vector, right? You call this as unit vector or direction vector. That is why when we multiply direction vector which has magnitude 1 with another magnitude, that becomes a vector of that magnitude which is needed. So position vector we will talk at the end. Before that, sabhi koi 1 2 4 write them down, and while writing down, keep understanding the terminologies we have used, and in case of any doubt, first make that clear.
if a vector has, so let us see this doubt. If a vector has SA direction of n, what is this? If a vector A has SA direction of n and other B of same magnitude but opposite direction of S, will the vector be negative vector? Yes, that will be negative as far as I can understand from your information given. तो अगर कोई एक वेक्टर है that's going along, let's say north, let's say it goes along north by 10 meters, and we have another vector which says that it goes towards south same as 10 meters, then yes, they are all, these both are negative of each other. So if you say the first one to be vector A, the second one will be minus A vector. If you say second one as A vector, first one will be minus of A vector. Right? These are also relative here. Which one you take as positive? So opposite to that direction will be negative. Okay, so I don't think so you all have any doubt. So let us at last see what we mean by position vector. So let us say, just understand the statement. Let's say I talk about a random person who goes 3 meters along x-axis and then 4 meters along y-axis. So if we observe this in this coordinate plane, so let us say person starts from the origin. So person goes 2 meters along x. So 3 meters along x. That means this point is coordinate 30, right? In short, you can say this is 3 meters. And person goes 4 meters along y. That means this is 4 meters. So in short, you can say this coordinate is 0, 4, right? We are just bringing mathematics into it. So this was the initial position of the person. And this is the final position of the person. Now, if I see the final position of the person, I can get the coordinate and the coordinate will be 3, 4, right? Very simple to get the coordinate. Now, if I want to get
If I want to write the coordinate in terms of vectors, just observe the statement. A person goes 3 meters along x. I can strike it off and write it as 3I cap, correct? And that means I am adding it, and then 4 meters along y. So I will then cut this as well and write 4j cap, right? How do we write 4 meters along y? 4j cap. 3 meters along x कैसे लिखते हैं? 3I cap. तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट के बदले हम लिख सकते हैं 3I cap plus 4j cap. Instead of this full statement I can write 3I cap plus 4j cap. तो मतलब या तो मैं पार्ट वाइज इसके इंफॉर्मेशन को देख लूं, और I can say person moved from initial to the final point. So this is the direction. Displacement ये है, right? This is the direction of displacement. तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, that is 3I cap plus 4j cap. Now what is this 3I cap plus 4j cap? We call this as position vector. So what does position vector signifies? Basically it gives the idea about the point with respect to the origin. So let us suppose, for example, ये मैं एक पॉइंट दे दिया 5 6. What will be the position vector of this point 5? Point P. Jaldi, jaldi, quickly. How I can write the position vector of this P? 5I cap plus 6j cap. Yes, 5I cap plus 6j cap. तो चलो इसको वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये O है, O से P जा रहा है, दैट मीन्स OP वेक्टर, चलो कह दिए. Somewhere you will also see this written as P vector equal to 5I plus 6j. Whenever the reference is origin, in that case we have a choice कि OP vector या P vector लिख दें. Okay, this is clear about the position vector. तो आज ये सारे vectors clear होने चाहिए आप लोगों को, these basics. We will see some more types of vectors, but remember, in the upcoming classes, whatever mathematics we will be discussing about vectors, we will just require these 5 vectors which we have studied today. हाँ, कुछ और vectors भी पढ़ेंगे, the types of vectors, other types, ये भी use होंगे, but not as of recent point of view. So other types of vectors, let us see. कोलिनियर वेक्टर्स, ये फ्रेज के हिसाब से हमने वेक्टर के टाइप बना दिए. कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, definition of position of a vector with respect to origin. Definition याद नहीं करना है. Nowhere you will be asked about the definition of position vector. You will be asked to determine position vector. So in short, you can say it gives you the position with respect to origin. अगर डेफिनेशन लिखना भी है, बाय चांस अगर आ गया कहीं पर, चलो ये लिख देंगे. इट गिव्स आइडिया अबाउट द पॉइंट, पॉइंट कह दो या फिर पोजीशन कह दो, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आए कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, localized and delocalized or free vectors. Localized vectors and free vectors, or you can say delocalized vectors.
or non-localized vectors. Non-localized vectors. So the definitions are not that much complex. It's very much simple. Collinear vectors. Those vectors which lie along the same line. That's the meaning of collinear. So vectors along same line. So what do we mean by this statement? Vectors along same line. So those vectors which will be having same direction in fact. जैसे ये लाइन है तो इस पे अगर एक वेक्टर बना दिया ये, दूसरा वेक्टर बना दिया ये, so they have same direction, right? So vectors along same line, they are called collinear vectors. Next comes coplanar vectors. Those vectors lying on the same plane. जैसे कि जितने भी वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, these all are lying along the plane of the computer screen. So for example, all vectors along the plane of computer screen. Third is co-initial vectors. Vectors with same initial point. Vectors with same initial points. So these two vectors are called as co-initial vectors because they have the same initial point. Orthogonal vectors. Vectors which are perpendicular to each other. Vectors which are perpendicular to each other. So for example, you can say I cap, j cap and k cap. These three unit vectors are even orthogonal vectors. So why I have said that they are orthogonal vectors? Because they are perpendicular to each other. In the same manner, we have localized and delocalized vectors. What is localized vectors? With fixed initial point. Vector having fixed initial point. Delocalized vectors. Vectors having flexible initial point. Right? Vectors having flexible initial point. So ये जो सारे vectors हमने discuss किए at the end, these were just important to understand, which we will be using some point of the time later on. But the most importantly, we have to understand equal vectors, negative of vectors, and position vector, the most importantly. So this class, we have just gone through the basic definition and description about vectors. In the next class, we will see the operations of vectors and even do some more questions based on this. Yashas, that doubt, that is not a doubt, that is, we have been going into that question since the very first point of time we started with vectors. You can unmute your mic and let me know what is your doubt. That was not, I cannot understand from there. What I can understand is you are talking about this line and this, that is very irrelevant to what is with respect to physics and maths. Example of localized vector, for example, you can say force acting on a wall. You can say wall पे जो force लगाते हैं उस पे force is a vector and you are applying this vector from some initial point. So this initial point is fixed.
But in case you are able to move this object, so for example, force applied on chair. So in case if you are able to move this, then that vector becomes flexible. So initial point is not fixed more. So it can move. So that is free or non-localized or delocalized vectors. So Yashas, if you can. Yes, tell me now what doubt you have. सर इधर मेरे को ये डाउट है, सर फॉर एग्जांपल अभी एक बंदा है ना सर, उस बंदे के जो पैर हैं एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है उसके कि जिस डायरेक्शन में वो बंदे के पैर चलेंगे, अब वो उन्हीं दो पैरों से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल सकता है, किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है सर। तो सर मेरा ये डाउट था कि अगर हम इस केस में जो हमारा मूवमेंट है उसको हम अगर मैग्नीट्यूड लेंगे और डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग, तो सर मैं ये कह रहा था कि अब जब यूजुअली हम लोग चलते हैं जिधर मूव करेगा उधर ही मैग्नीट्यूड होगा ना, जिधर मूव करेगा मैग्नीट्यूड तो उधर ही होगा। सर मैं कह रहा हूँ जैसे अगर ये है, ये अगर पीछे जा रहा है तो इधर होगा। नहीं सर मैं वही कह रहा हूँ सर, वैसे ही कह रहा हूँ मैं कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हमने जितना डिस्टेंस कवर किया, राइट, तो अगर हम हमारे सर नाउ अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हैज नो डायरेक्शन बिकॉज ऑब्वियसली वो मैग्नीट्यूड है। तो मैं मैग्नीट्यूड को कहीं और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किसी और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट जो मेरा डायरेक्शन है, जो मेरा डायरेक्शन अलग से वैल्यू है, मैं उसको उसी के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सर जैसे मैंने इधर किया है सर, ए बी लाइन में एरो, एक छोटा सा एरो हेड मैंने सी बनाया है सर। ना सर इस केस में ए और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड भले मैंने किसी और डायरेक्शन में डाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क होता है, बट मैंने जो डायरेक्शन डाला है दैट इज एरो हेड सी। तो हम वेक्टर को ले सकते हैं द मैग्नीट्यूड बाय रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और फिर जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द एरो हेड सी। जस्ट थिंक, अगर मैं ऐसे कुछ बना दिया यहाँ पर, ये बना दिया और कुछ ऐसा दे दिया, तो इससे क्या समझ रहे हो? तो जो लाइन हमने बनाई है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड बनाया है वो डायरेक्शन हो जाएगा उस मैग्नीट्यूड के लिए। तो अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं तो डायरेक्शन ये होना चाहिए ना। सर ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं जा रहे हैं सर, ये जो लाइन बनाई है ए बी, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है सर, ये डायरेक्शन, ये पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं करता सर। पोजीशन कैन बी डायरेक्शन एनीथिंग हमारा है। ये रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या समझते हैं हम? ये तो बना दिया, इससे क्या समझे हो बताओ? सर ए मैं से कह रहा हूँ लेफ्ट से राइट गए कि राइट से लेफ्ट गए, क्या समझे बताओ? सर हम साउथ से नॉर्थ गए हैं, क्योंकि जो हम इस केस में जो ये दो हमने लाइन बनाई है, दिस इज नॉट द डिस्टेंस, हमने ये एक वो पाथ नहीं बनाया है सर, हमने बस इतना बताया कि हाँ इतना डिस्टेंस वो चला है। तो अगर अब किस इतना डायरेक्शन में डिस्टेंस चला है वो चला एरो है, हेड से बता रहे हैं। तो मतलब ये एरो हेड से तुम कह रहे हो इस डायरेक्शन में चला है? यस सर, एरो तो हेड सेम जो लाइन है इधर इधर जो थोड़ी चला है, मैग्नीट्यूड, इधर थोड़ी चला है, वो तो इधर चला है लेफ्ट से राइट। सर ये जो लाइन बनाई है ये पाथ नहीं बताता सर, ये बताता है कि कितना चला है बस। अब वो कहाँ से कहाँ चला है, ये जो एंड पॉइंट्स है सर, वो एंड पॉइंट्स ये नहीं डिटरमाइन करते कि पहले हाँ वो पहले लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पे था फिर वो ये राइट वाले कहाँ एंड से? पॉइंट पे गए। पाथ तो नहीं बताता है, लेकिन ये तो बताता है ना कि यहाँ से अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो ए से बी ऐसे जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ये बताता है हमें। इफ यू मैं वही इवन कह रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, अगर ऐसे भी जा रहे हो ए टू बी, तो हम तो यही रिप्रेजेंट करेंगे ना, हम ए से बी गए। सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इसका एक एंड पॉइंट है मैं उस एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ।
मैंने बस ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ ये लाइन है, इतना डिस्टेंस एक्चुअली जो लाइन का लेंथ है, ठीक है, इतना हाँ मैं डिस्टेंस है। अब उतना डायरेक्शन, लेंथ में चला हूँ, अब किस डायरेक्शन में चला हूँ वो एरो हेड डिटरमाइन कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में कैसे चल सकते हैं हम ए से बी? सर ए से भी नहीं जा रहे हैं, ए बी इधर जो का जो लेंथ है किधर जा रहे हो? सर जा एरो हेड के डायरेक्शन में रहे हैं। इधर जा रहे हो? यस सर। सर ए से हमने बी जो किधर बस कैसे ट्रेवर्स हो रहा है? सर हमने ए और बी वो नहीं बताया कि हाँ हम ए से बी जा रहे हैं। ए बी जो लेंथ है हमने सेम लेंथ बस तो एक्चुअली ये जो फिर वेक्टर पढ़ने का फिर क्या फायदा हुआ अगर हम डायरेक्शन ही नहीं बता पा रहे हैं? सर एक बार आप मेरा वो पिक्चर दिखाएंगे सर जो मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, मैं दिस इज वेरी इररिलेवेंट, तो मैं एक काम करता हूँ, connect to me after the class because now again another batch will start. ओके सर। इसको हम काफी टाइम से क्लियर कर रहे हैं, so I'll connect to you on WhatsApp and see you ओके all in सर। the next class. ठीक है?